Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. We are studying the chapter number 5, the circular motion. And in this topic today, we have to talk about the centripetal force. Just before starting this topic, we have to keep again some points in mind so that we may discuss one by one all these points. And regarding centripetal force, the first point is we have to define the centripetal force, what kind of force this is. The second one, we have to give its a simple explanation. We have to give an idea how this force is acting basically, why it is it required. And the third one are the examples. The fourth point is the derivation of the equation that I have done in this topics in the different steps to make you understand, to make you clear the concept of derivation of this equation. And at the fifth point, we have to talk about the direction of centripetal acceleration. And the next, we have to define the centripetal acceleration. And at the end, we will derive the relation for the centripetal force. So students, first of all, we will talk about the definition of the centripetal force and its explanation. How would you define? Means the force that is required to bend the straight path into the curved path. It may be also defined as the force that compels a body to move on the circular path. A force that compels a body to move on the circular path is called the centripetal force. It may also be defined as the force that bends the straight path into the curved path is called the centripetal force. Students, how this force is acting and why is it required? The answer of this question may be explained by this simple explanation. Suppose we are having a stone that is tied at one end of the string and the other end of the string is in our hand. So we go on whirling, rotating the stone in the circular path, holding the string in our hand. What happens basically, our hand is providing the force because the body that is moving on the circular path, it requires some force, some mechanism or some kind of the pull towards the center of the circle that keep on rotating this object on the circular path. Our hand in this example basically is doing this job and keeps the object of the mass m moving on the circular path of the radius r as shown in the diagram. Students, what happens if the string snaps at any instant of rotation of this body? So if the string snaps, the body moves along the tangent at that point. So this is the simplest example and its explanation how the force is required, why the force is required to the body to rotate it on the circular path. The next point we have to discuss are the examples of the centripetal force. First of all, the natural and the artificial satellites. Again, the gravity is providing this force. Next, nuclear particles in the accelerators. Bodies whirled at the end of the strings. Flywheels spinning on the shaft. And the bending of the rods. In all these examples, basically, centripetal force is playing its major role. Next we have to derive the relation of the centripetal force, that is F is equal to m square by r. In order to derive this relation, we will go step by step so that we may understand the equation thoroughly. So first step is the body is moving on the circular path with a uniform speed as shown in the diagram on the slide. And in this diagram, we can watch the body is at the point A first, and after the time t, the body moves on the curved path and reaches the next point, that is B, means it moves from A to B. In this movement, it has covered the distance on the circumference of the circle of the radius r, that is del s. Del s is the length of the circumference that it has covered from moving from A to B.
and it takes the time suppose delta t in this traveling going from point A to the point B. And we know very well at any point on the circumference of the circle when the body is rotating, at any point the velocity of the body is along the tangent. We are talking about the translatory or linear velocity, tangential velocity, that would be along the tangent at that point. So in this diagram, a tangent is shown at the point A, and another tangent is shown at the point B. At the first point, the velocity may be called as v1, and at the second point, the velocity may be called as v2. So the change in the velocities is del v. And we are also having the relation of the time as well, because it takes the time del t in moving from A to the B. So changing velocity with the time, that is called acceleration. So first of all, we have to write the equation of the acceleration, that is A is equal to del v by del t. This is the first equation that we have to write in order to derive the relation of the equation of the centripetal force. In the second step, we have to put the value of the delta t in the equation number 1. You are watching equation number 1, and you have to put the values of the delta t and delta v one by one in this equation, and finally we would have the relation AC, that is the centripetal acceleration. So what we have to do in the first step, we have to put the values of the del t. So if the body is having uniform speed v while it is moving on the circle, and it takes time t, suppose del t, while it is moving from point A to the point B, means along the circumference of the circle whose length is del s, then by definition time would be equal to the s by v. Putting this expression of the delta t in the first equation, the first equation can be written as A is equal to v into del v by s. This is equation number 2, and in this equation number 2 we have to put the values of next del v. Students, in order to derive the value of the del v, basically we have to compare two equations. The first equation I would like to show you again, the first slide. The first triangle basically is being formed between the two radii, which you can see in this diagram, that is AOB. And the second triangle that is being formed between the two tangents, again that is shown on the right side of this equation. Then keep in mind what we have to do. We have to compare these two triangles, and by comparing these two triangles, and in our discussion we have to prove that these two triangles are equal, and if they are equal then they are having the same ratios of their sides, and if they are having the same ratios of their sides, then by this concept we can have the value of the delta v. This is our next target that we have to drive. स्टूडेंट्स, मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा कि इस कंसेप्ट में चैप्टर नंबर 3 स्टेप में हम लोगों ने दो ट्रायंगल्स के कंपैरिजन से डेल वी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस कंपैरिजन में हमने दो ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल कंसीडर करना होता है। इन दो ट्रायंगल्स के कंपैरिजन में हम एक बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, आप इसको याद रखेंगे कि एंगल बिटवीन द टू रेडाई इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट दोज पॉइंट्स। ये जो कंसेप्ट है बाज़ औक़ात समझने में मुश्किल लगता है। सपोज अगर मैं इसी डायग्राम को आपको दिखाऊं, तो इस डायग्राम में देखें कि दो रेडाई के दरमियान जो एंगल बनता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या आपको ये लगता है कि ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स के जो एंगल बनता है वो दरमियान वो बराबर होगा? मीन्स एंगल बिटवीन द टू रेडाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ए एंड द बी रेस्पेक्टिवली। इस कंसेप्ट को ग्रास्प करने में थोड़ी मुश्किल होती है और लगता है कि नहीं, शायद ये दोनों एंगल एक जैसे नहीं होंगे। तो हम इसको एक सिंपल आइडिया से समझ सकते हैं। जो ये डायग्राम दिखाई गई है डायग्राम ए में, यहाँ पे इसको देखें कि दो रेडाई के दरमियान
कौन सा एंगल है? आर और आर दो रेडाई दिखाए गए हैं लेफ्ट साइड पे डायग्राम ए में। दो रेडाई के दरमियान कौन सा एंगल है? तो दो रेडाई के दरमियान एंगल 90 का बनता है। इसी तरह अगर पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन जिसको हम ए और बी कह रहे हैं, हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें और इन दो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल को देखें तो कौन सा एंगल बनता है? अगेन दो टेंजेंट्स के दरमियान भी एंगल 90 बनता है। इस डायग्राम में दोनों जगहों पे 90 एंगल दिखाए गए हैं। एक 90 एंगल बनता है बिटवीन द टू रेडाई और एक 90 एंगल बनता है बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन क्या बनता है कि जो एंगल दो रेडाई के दरमियान होगा वही एंगल दो टेंजेंट्स के दरमियान में होगा। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा सा और अगर देखा जाए तो डायग्राम बी में हमें दो रेडाई के दरमियान एंगल थीटा लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम एंगल थीटा वुड बी देयर बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज़ करेंगे और इसको आपने समझना है कि दो रेडाई के दरमियान जो एंगल बनेगा एट एनी इंस्टेंट एट एनी मोमेंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स अलोंग द सर्कल, अगर उनके टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो टेंजेंट्स के दरमियान भी वही एंगल बनता है जो दो रेडाई के दरमियान बनता है। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 को मैंने पॉइंट्स में कंक्लूजन और फाइनल इक्वेशन में ड्राइव किए हैं और इसके साथ स्लाइड पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये जुमले हमारी बुक के जुमलों के ऐन मुताबिक हैं और जो हमने डायग्राम बनाई है ये डायग्राम बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक लिखी गई है। काफ़ी मेहनत हुई है इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करने में ताकि जो मैं बोल रहा हूँ, जो हम बोलते हैं, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, जो आप लोगों ने याद करना है वो आप लोगों को समझ आए। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू द V1 एंड द PR इज़ पैरेलल टू द V2। बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने एक ट्रायंगल बनानी है। जो ट्रायंगल हमारी टेंजेंट्स के साथ बन रही है उस ट्रायंगल को हमने अलग से बना के दिखाया है और फिर उस ट्रायंगल को हम पहले वाली ट्रायंगल दैट इज़ फाउंड बिटवीन द टू रेड आई उसके साथ हमने कंपेयर करना है। तो इस कंपैरिजन में हमने V1 के पैरेलल एक लाइन लगानी है। इसी तरह V2 जो हमारा सेकंड टेंजेंट है एट द पॉइंट B उसके पैरेलल एक लाइन लगानी है और फिर उन दो लाइनों में ट्रायंगल को बना के रेडियस वाली जो ब्राउन ट्रायंगल हमें नज़र आ रही है उसके साथ हमने ग्रीन और ब्राउन का आपस में कंपैरिजन करना है। तो इसमें पहला जुमला लिखा गया है कि जो PQ लाइन आपने लगाई है सेकंड ट्रायंगल में ये बेसिकली V1 के इक्वल है, पैरेलल है। इसी तरह जो आपने PR लाइन लगाई है ये आपके V2 वेक्टर के इक्वल और पैरेलल है। और सेकंड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है कि रेडियस ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस हमेशा अपने टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है OA, गौर से देखिए OA कहाँ पे है और फिर पॉइंट A पे टेंजेंट कौन सा है? V1। तो OA V1 के परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह OB की लाइन कहाँ पे है और B पॉइंट पर टेंजेंट कौन सा दिखाया गया है? दैट इज V2। तो OB V2 के परपेंडिकुलर होगा। और इस डिस्कशन से हमें ये आइडिया मिलेगा कि ये जो एंगल बनता है हमारे पास AOB और दूसरी ट्रायंगल में जो एंगल बनता है QPR, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। और तीसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो ये है कि V1 और V2 को इक्वल कंसीडर करें और इसी तरह OA और OB को इक्वल कंसीडर करें। OA एंड द OB इक्वल ही हैं बिकॉज दीज आर द टू रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। मैं 3 पॉइंट्स को दोबारा दोहराता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये कहा कि PQ इज पैरेलल एंड इक्वल टू द V1 एंड द PR इज पैरेलल एंड इक्वल टू द V2। कंसेप्ट को ग्रास्प कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट में हम ये कहते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो OA is the radius and it is perpendicular to the tangent at this point, that is V1. Again OB is the radius and it is perpendicular to the V2, that is the tangent at this point. So what happens, the angle between the two radii, that is AOB, and the angle between the two tangents V1 and the V2, that is the QPR, would be equal.
And the third point is V1 and the V2 are equal in the magnitude, and OA and the OB are equal. So what kind of the result we are having from this comparison? हमारा कंसेप्ट ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोसीलीस हैं, और अगर इन दोनों ट्रायंगल्स आइसोसीलीस में उनका एंगल बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं, इक्वल होती हैं। और अगर वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी कोई सी भी दो साइड्स का रेशो ले लिया जाए रेस्पेक्टिव दोनों ट्रायंगल्स में, वो इक्वल होगा। जैसे ब्राउन जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है, इस ब्राउन ट्रायंगल में हम एक रेडियस और डेल आर की वैल्यूज़ ले लेते हैं, और इस तरह जो ग्रीन आपको जो ट्रायंगल नज़र आ रही है उसमें भी डेल वी मीन्स क्यू आर और एक वेलोसिटी V1 की हम रेशो ले लेते हैं, तो ये रेशोज जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी। कंक्लूजन में क्या लिखा है? बोथ ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस एंड फ्रॉम ज्योमेट्री वी नो टू आइसोसेलेस triangles are similar if the angle between their equal arms are equal. Hence the triangle OAB is similar to the triangle PQR. और अगर ये दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो उनकी रेस्पेक्टिव टू साइड्स की रेशोज़ भी बराबर होनी चाहिए। लिहाजा जो हमारे पास ग्रीन ट्रायंगल में बात हो रही है, ग्रीन ट्रायंगल के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि डेल V2 V1, अब V1 की जगह मैं भी लिखूंगा क्योंकि V1 V2 बराबर हम पहले बात कर चुके हैं। लिहाजा ग्रीन ट्रायंगल के हवाले से बात कर रहा हूँ। डेल V2 V रेशो बराबर है, किसके बराबर है? डेल V2 V रेशो किसके बराबर है? अब ब्राउन ट्रायंगल में आके देखें, ब्राउन ट्रायंगल में यही दो साइड्स अपने फॉलो करनी है और वो हमें बनती हैं AB to R रेशो। व्हाट इज AB? AB हमारे पास साइड है A से लेके B तक, ये कॉस वाली साइड पे देखें, आर्क वाली साइड पे आपको नजर आ रही है, तो AB to R रेशो के AB to R ये रेशो बराबर है। तो हमारे कंक्लूजन में क्या बन गया? डेल B to V रेशो इज एग्जैक्टली इक्वल टू द AB to R रेशो। ये दोनों रेशोज आपस में बराबर हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर थी। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप नंबर 3 का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अमूमी तौर पर जब आप टेस्ट लिखेंगे तो इसी पॉइंट को ही गड़बड़ किया जाता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, और वो तीन बातें जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि जो PQ है वो V1 के इक्वल पैरेलल है, जो PR है वो V2 के इक्वल अंदर पैरेलल है, और उसके बाद टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। लिहाजा OA रेडियस है जो कि V1 के परपेंडिकुलर है, OB रेडियस है जो कि V2 के परपेंडिकुलर है, और फिर तीसरी बात यह है कि V1 V2 और OA एंड OB हम बराबर एज्यूम करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस बन जाएंगी, सिमिलर होंगी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, तो इनकी रेस्पेक्टिव टू साइड्स की रेशियोज भी एक जैसी होनी चाहिए। मीन्स डेल B to V रेशो इज इक्वल टू AB to R रेशो। फोर्थ स्टेप में हम ये बात करते हैं कि अगर A और B के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, इस डायग्राम को देखें दोबारा, A और B के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, A और B के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। अगर A और B के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है तो फिर A और B से जो डिस्टेंस बनता है, स्ट्रेट जो डिस्टेंस बनता है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी AB बनती है वो AB आर्क के बराबर होगी। इनफैक्ट जितना फासला आप बढ़ाते चले जाएंगे, A से B जितना दूर होते चले जाएंगे, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द A एंड द B वो कम होगा। लेकिन जब आप आर्क में मूव करेंगे, सर्कमफ्रेंस में मूव करेंगे, आपका वो डिस्टेंस ज़्यादा बनेगा। आर्क वाला डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा बनता है। तो हमने यहाँ पे इसको लिमिटाइज किया कि अगर A से लेके B तक डिस्टेंस बहुत कम हो, मीन्स B इज़ वेरी क्लोजर टू द A, B की वैल्यू A के बहुत करीब है, तो हम ये कह सकते हैं A से लेके B तक का डिस्प्लेसमेंट A से लेके B तक बनने वाली आर्क कॉस यानी कि बराबर होंगी। इस केस में हम उस कॉस की जगह इस केस में हम AB की जगह हम कॉस की वैल्यू S लिख सकते हैं, जो कि हमें पॉइंट नंबर 4 में दिखाया गया है। If the point B is close to the point A on the circle, as will be the case when del T approaches to 0, the arc S is nearly the same as the length of the line AB. तो इस लास्ट इक्वेशन में हम AB की जगह S लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल V बाई V इज इक्वल टू द S बाय R,
और इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें डेल वी के हवाले से तो डेल वी इज इक्वल टू वी एस बाई आर बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 है। इस इक्वेशन नंबर 4 को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारा फाइनल रिलेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आता है। एज दिस एक्सीलरेशन इज कॉज्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सो इसको हम ए नहीं लिखेंगे, इसको हम ए सी लिखेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू द वी स्क्वायर बाय आर। नेक्स्ट स्टेप में हमने डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन के हवाले से बात करनी है। अगेन जो हमारे बुक के वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने उसी के लिहाज से इस डायग्राम को अरेंज किया है। अगेन इस डायग्राम को बनाने में मुझे काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़े, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कंसेप्ट आपको मिले। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू द ओ ए। देखिए गौर से देखिए डायग्राम को, क्या आपको पी क्यू ओ ए के परपेंडिकुलर लगता है? एग्जैक्टली पी क्यू ओ ए के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से जो पी आर है इस परपेंडिकुलर टू द ओ बी, इसी तरह जो पी आर है वो ओ बी के परपेंडिकुलर है। एंड क्यू आर जो कि हमारी पी क्यू आर वाली ट्रायंगल है, जो क्यू आर है इस परपेंडिकुलर टू द ए बी, और यहाँ क्यू आर जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि पी क्यू इस परपेंडिकुलर टू द ओ ए एंड पी आर इज परपेंडिकुलर टू द ओ बी, और जो पी क्यू और पी आर के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है और वो बनता है डेल वी। डेल वी मीन्स के क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। इट मे बी नोटेड दैट द क्यू आर इज पैरेलल टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी। मीन्स कि अगर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए, जो मैंने यहाँ रेड लाइन दिखाई है, ये रेड लाइन बेसिकली ए बी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप देखें क्यू आर वाली लाइन रेड लाइन के पैरेलल बनती है। क्यू आर वाली लाइन पैरेलल लाइन के रेड लाइन के पैरेलल बनती है। तो यहाँ पे हमने जो 3 पॉइंट्स बोले, ये 3 पॉइंट एग्जैक्टली आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या बनाएंगे? कंक्लूजन क्या बनेगा कि ये जो क्यू आर है बेसिकली डेल वी है, और जो डेल वी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन को ज़ाहिर करता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है। As the acceleration of the object moving in the circle is parallel to the del v, and del v is so small that approaches to the zero, so the centripetal acceleration is directed along the radius towards the center of the circle. तो अगेन स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसको मैंने लिखना है, कुछ स्लाइड साथ साथ लिखी हैं, अगेन लिखने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आइडिया ये था कि आप लोग इसको जो लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ जो डायग्राम आपको नज़र आती है आप उसको समझ सकें। Next is the acceleration. The instantaneous acceleration of any object traveling with a uniform speed in the circle is directed toward the center of the circle, and this acceleration is said to be centripetal acceleration, that is shown in this Q diagram. And at the end what we have to do, अब हमने जो न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू एम ए इक्वेशन पढ़ी थी, उसको एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी करेंगे, और उसमें हम ए सी की वैल्यू जो कि सेंटीपेटल की इक्वेशन है, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन वाली इक्वेशन है, वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया सेंटीपेटल फोर्स का। और इस रिलेशन में हम वी की वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। हमें पता है कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, आर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली एफ सी इज इक्वल टू दी एम आर ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये था हमारा सेंटीपेटल फोर्स, और इस सेंटीपेटल फोर्स में मैं एक दफ़ा कंक्लूड करूँगा। हमने कितनी बातें डिस्कस की, इसमें सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन किया सेंटीपेटल फोर्स क्या होता है, उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके बाद फिर आपने उसकी एग्जांपल्स देनी है, एग्जांपल्स देने के बाद आप इक्वेशन को डिराइव करेंगे। याद रखिएगा इक्वेशन को ड्राइव करने में हमने स्टेप 1 2 3 4 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने उनको मूव किया है, हर स्टेप के साथ अ लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन दैट इज़ समवट नेसेसरी टू एक्सप्लेन द डायग्राम, और डायग्राम भी वो दी गई हैं, और डायग्राम इस तरीके से अरेंज की गई हैं जो उन डिस्क्रिप्शन के एन मुताबिक हों, और आपको जो टॉपिक को समझने में इंतहाई आसानी रहे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, और अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स अ लॉट।